ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ತೆಗಳು. We are so fortunate to take part in Jina Puja along with Sri Ajit Benede ji. He is conducting group puja from many years, due to which Jain community is strong in Germany, and we all have got the opportunity to get together and to know many Jains here in Germany. Today is really an auspicious day for us. We have the holy presence of Bharata Bhushan, Dr. Charukirti Panditacharya Varya Mahaswamiji, Jaina Kashi, Mudubidire, Dakshina Kannada, where 1000 Pillars Jain Temple is situated. I would like to give a short introduction of Mudubidire Jain Mutt and Pujya Swamiji. It's really tough to put his achievements in few words, but I tried to keep it short. Jain Mutt Mudubidire was founded in the year 1220. I'm so happy to tell you that my native Harige Basadi, which comes under Mudubidire Pita. Many Jain Basadis come under this Mudubidire Pita. Honorable Swamiji's coronation or Pattabhisheka happened in the year 1999. Swamiji has a diploma in computer science and civil engineering. He had his post-graduation education and obtained masters in economics and Vastu Visharad. He participated in World Conference for Religion and Peace at Barcelona in July 2004. He has undertaken more than 40 foreign tours of countries like USA, Canada, UK, France, Australia, and so on. He has attained 4 Parliament of World Religion Conferences, and he is engaged in many religious, cultural, and social activities. Pujya Swamiji, the Mudubidire Mutt is running old age home and running free student hostels too. Pujya Swamiji can answer the questions raised by all the seekers and clarify the confusions, if any, on Jainisms. Especially the kids really like to interact with him. I request Pujya Swamiji to give his Ashirvachan on behalf of the Jain Sangh Germany and Sri Ajit Benede ji and Shravak Bandhus of Germany. I request Pujya Swamiji to offer his Ashirvachan and his blessing. Omkaram bindu sanyuktam nityam dhyayanti yoginah kamadam mokshadam chaiva omkaraya namo namah. Moksha margasya netaram betaram karma bhubratam jnataram vishwatattvanam vande tadguna labdaye. जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ स्वामी भगवान की जय। महावीर स्वामी भगवान की जय। सधर्म सम्यक्त्व बंधुओं, आज जर्मनी दिगंबर जैन समाज का काफी साल पहले हमने वहां आए थे और वुल्सबर्ग का अभी मैं देख रहे हैं मंदिर का, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वो मंदिर में 2004 में गृह चैत्यालय में हमने अजित बेनाडी जी के साथ आया था और वहाँ काफी 2 यूनिवर्सिटी में हमने विजिट किया था, मिचिगन यूनिवर्सिटी और मिनिस्टर यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी में अजित बेनाडी ने मेरे को लेकर गए थे और जयदन बोस्ते और साथ साथ हरमन कून और वुल्सबर्ग करके जोसेफ करके एक आदमी भी थे। तो विशेष रूप से जर्मनी एक हमारा मुनियों का प्राचीन प्रायः तीर्थ भी हो सकता है। अफगानिस्तान, लेबनान, उसके बाद वहां भी कल्याण नाम का एक मुनि, कल्याण कीर्ति नाम का मुनि भी प्रायः हमारा यूरोप में भी गया होगा। और इसीलिए भारत के बाद कोई भी तत्व शास्त्र के ऊपर, भाषा शास्त्र के ऊपर, धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं पूरा विश्व में, वो सेकंड नेशन बोल सकते हैं हम, वो जर्मन है। तो नियरेस्ट यूएसए और यूके के बाद जर्मनी का नाम विशेष रूप से आ जाता है। इसीलिए वहां का वातावरण, वहां का प्रकृति, सारे विशेष रूप से जैन धर्म का अनुसार, जैन वेगन अहिंसा के
बहुत बड़ा प्रचार वहां जर्मनी में मैंने देखा। इसीलिए आज जितने भी कठिन परिस्थिति में आप लोग सवाल लेकर अपना देश का संस्कृति और संस्कार को वहां जर्मनी में जाके सेलिब्रेशन करना हम सबको गर्व है, और बहुत इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और शुभाशीर्वाद। हमारा जैन धर्म में मैंने आज क्या परिचय दे दूं, विशेष रूप से मनुष्य अपना अपना कर्म के अनुसार अच्छा गति में जाता है, नहीं तो बुरा गति में जाता है। उत्थान और पतन दोनों के कारण हमारा मस्तिष्क है, मन है। इसलिए मन में यदि हमने अच्छा भाव किया तो अच्छा गति प्राप्त होता है। यदि हमारा मन बोले तो मति में बुरा भाव किया तो हमको कुगति मिलता है। इसीलिए कर्म अपना हाथ में है, अच्छा भी होना बुरा भी होना, तो फिर संस्कार भी साथ रहे। इसीलिए हर एक व्यक्ति और जीव सामान्य मनुष्य के जैसे दुनिया में पैदा होता है। उनको सच्चे भगवान, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन है, ऐसा प्रश्न यदि करे तो उनको मालूम पड़ेगा अपना जीवन का रास्ता सरल बन जाएगा, और मुक्ति को ओर उन्होंने जाने के लिए उनको बहुत अच्छा प्रेरण मिलेगा। इसलिए हमारा पूर्वाचार्य ने कहा, जीव पाले नरस्य आवरणम रूपः, रूपस्य आवरणम ज्ञानः, ज्ञानस्य आवरणम गुणः, गुणस्य आवरणम क्षमः। तो क्षमाधारी रूप में हम अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करना है। विशेष रूप से मानव मनुष्य का दैवी संपत्ति का अपना के हम आगे बढ़ना है। और अपना संपत्ति क्या है? औदारिक तेजस कार्बन रूपी शरीर हमको मिला, और इसके साथ साथ कर्म सिद्धांत में यथार्थ रूप का श्रद्धा, यथार्थ रूप का ध्यान और यथार्थ रूप का चारित्र के साथ हम अपना जीवन को बैंड अप करना है। और हर प्रत्येक आदमी में अपॉर्चुनिटी इक्वल है, तो कौन इसमें प्रयास करते हैं गुणों को ग्रहण करने का, वो गुणग्राही आत्म हो जाता है। हम सस्य बोले तो प्लांट में भी जीव है, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। स्पर्शनेन्द्रिय से चालू होता है जीव, तो एकेंद्रिय जीव बोलते हैं इसको। स्थावर और त्रस, स्थावर जीव है, वो चल नहीं सकते, अमीबा है, हाइड्रा है, जैसे सारे एकेंद्रिय जीव है। वायु में, जल में, अग्नि में, वनस्पति में, पृथ्वी में है, और वैसे विकसित हो जाता है द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय में। तो पांचों इंद्रिय मिलते हैं मनुष्य पर्याय में। तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य मोक्ष में डायरेक्ट नहीं जाएगा जब तक उन्होंने गुण ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उन्होंने यथार्थ रूप का देव शास्त्र गुरु का परिचय नहीं करेगा। वो अपना मैप में सच्चे गोल और रीचिंग पॉइंट में वो नहीं जाएगा, उनका ट्रैवल रुकावट में हो जाता है। इसीलिए अपना जीवन का उद्देश्य है मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, दुख से पार होना, और गंतव्य में हमने क्या सोचा था उसमें जाना। तो वो है मुक्ति, वो है सिद्धत्व, वो है मोक्ष, सैल्वेशन। सो हमने अभी अपना जीवन में गुण ग्रहण का ओर आगे बढ़ना है। इसमें 8 प्रकार का कर्म बताया, दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, अंतराय और बोध। ये 8 कर्म बंध तत्व में हमको मिलता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। तो जीव को आश्रव होता है और बंध होता है। तो कौन सा जीव को आश्रव होता है, बंध होता है? तो कौन जीव मात्र है, उसको पुद्गल रूपी इस शरीर में
अभी पूजा किया था, कौन सा कर्म का आश्रव हुआ? पूजा के भक्ति के समय शुभाश्रव हुआ, स्वाध्याय करते समय शुभाश्रव हो जाता है, पूजा के समय शुभाश्रव हो जाता है। इसीलिए हम शुभ और अशुभ दोनों भी बंधन है। फिर इसमें दो प्रकार बताए, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अप्रशस्त से प्रशस्त अच्छा है, इसके भाव से बुरा से अच्छा भाव करके हम साधन का मार्ग में आगे बढ़ के परिपूर्ण ज्ञान मिलेगा, तब हमको कोई भी लालच नहीं रहेगा। वो समय हमने अपना मोक्ष के ओर जा सकते हैं। इसीलिए हमारा मस्तिष्क में अच्छा सोच करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, ये ग्रीडी, एंगर, ये ऐसे सारे चीज है। वो सारे चीज को हमने हटाने के लिए हमको अपना धर्म में सारे अच्छा संस्कार दिया है, एजुकेशन दिया है। इस एजुकेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एनीबडी कैन इज अडॉप्ट इट। कोई भी एक व्यक्ति है वो अपना शक्ति ऐसा अच्छा वर्च्यूज को, वैल्यूज को अपनाने के लिए लॉर्ड महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी सबको ओपन समोसरण में सर्वोदय धर्म तीर्थ में बताया। तो इतना सुंदर विचार बताया, अपना गति अपना मति के साथ है। इसीलिए मति को सरल बनाओ और क्षमा के साथ, मार्दव के साथ, आर्जव के साथ, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य आदि गुणों के साथ जाओ और निज स्वरूप को जानो। आपका पास पूरा ताकत है, तैरना है। अनेक प्रकार का विष, अजगर और मगर, मच्छर सब मिलता है समुद्र में, तो उसके ओर आप तैरने के लिए आपके पास धैर्य चाहिए, स्थैर्य चाहिए और अनुकंपा, करुणा के साथ अपना मार्ग में कहाँ भी आपको चैलेंज आ जाता है, दुख आ जाता है, नाना प्रकार का प्रसंग आ जाता है, उसको आपने आराम से धर्म से आगे बढ़ना। एक कथन आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कर्नल कासलीवाल जी उनका डॉक्टर थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज करके 30,000 मिलिट्री को बनाए थे। तभी का बात है, स्वतंत्र पूर्व का समय 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया का बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। तब उनका डॉक्टर थे, वो जैन थे, वो दिगंबर जैन कासलीवाल करके थे, इंदौर के थे। और जैन धर्म में एक विशेष है, श्वेतांबर हो दिगंबर हो, दोनों में हम वीतरागी है, हम वीतरा का उपासक है, अहिंसक है। तो उन्होंने रोज उनका इलाज करते थे डॉक्टर जी ने। और सुभाष चंद्र बोस एक दिन बहुत ध्यान में थे, तब उन्होंने आके बताया डॉक्टर जी ने, आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं और कुछ कर रहे हैं? तो नेताजी ने बताया, मैंने ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? आत्म का ध्यान कर रहे हैं। आत्म क्या है? तो आपने तो बताया ये है चेतन उपयोग और ज्ञान उपयोग। अच्छा, आपको इतना ज्ञान आ गया अभी, इसका बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सारे मेरे को धैर्य है, सारे मेरे को स्थैर्य है, और मेरा ऊपर एक विशेष शक्ति है, वो मेरा आत्म से ही मेरे को मिलता है। इसीलिए मेरे को शरीर में कोई भरोसा नहीं है, शरीर कभी भी चलेगा, और आत्म के ऊपर भरोसा है। इसीलिए मैंने महान आत्म का चिंतन कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने उत्तर दिया। बंधुओं, इसीलिए हमारा जीवन में हम यथार्थ रूप का श्रद्धा और यथार्थ रूप का जानकारी, विज्ञान, विशेषता और इसका जानने के बाद आचरण करने का प्रयास करना। हमारा आहार का चर्या कैसे होना चाहिए, हमारा आचार कैसे होना चाहिए, मेरे से किसी को भी दुख ना पहुंचे, करुणा अनुकंपा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। जीवन में हर दिन हर क्षण जैन धर्म का आचार करने के लिए नाना प्रकार का सवाल आता है। रास्ते में जाओ, मंदिर में जाओ, दुकान में जाओ, कंपनी में वर्क करो, कहाँ भी आपका एक मन, वचन और काय, इस 3 प्रकार का शुद्धि के साथ आप यदि चले
आपको कोई भी आतंक नहीं आएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। यदि हमारा मन शुद्धि नहीं है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, मानसिक अस्वस्थता आ जाता है, बीमारी हो जाता है। इसीलिए हमारा मानसिक अस्वस्थता किसके दूषित हो जाता है? भोजन से दूषित हो सकता है, क्रोध से दूषित हो सकता है, मान से हो सकता है, माया से हो सकता है, लोभ से हो सकता है। इसीलिए कहाँ कहाँ मेरा मन को दूषित करने का भय है, उसको दूर करने के लिए वीतराग भगवान ने बताया। धर्म बंधुओं, अपना जीवन हर हर व्यक्ति के लिए मुक्त है। कौन सा जीवन को हमने चुनौती करना, कहाँ ज्यादा परिग्रह होता है वहां मेरा डिस्टरबेंस ज्यादा आता है, कहाँ मेरे से एकांतवाद होता है वहां झगड़ हो जाता है। कई लोग बोले, एक भोजन गृह में आए थे और एक आदमी ने बोला मेरे को मिठाई पसंद है, दूसरे ने भी बोला मेरे को भी मिठाई पसंद है, तीसरे ने बोला मिठाई में मेरे को जलेबी पसंद है, और कई लोग बोले मेरे को लड्डू पसंद है, और एक आदमी ने बोले मेरे को खीर पसंद है। अरे भाई, कौन सा मिठाई पसंद है? तो झगड़ होने शुरू हो गया। एक अनेकांत वाले ने आए, उन्होंने बताया तुम्हारा जलेबी है वो भी मिठाई है, तुम्हारा खीर है वो भी मीठा है, और हर चीज लड्डू भी मीठा है, तो हर चीज सही है, अपना अपना वोट। आप जलेबी खाओ, लड्डू खाओ और खीर खाओ, कुछ भी खाओ, मतलब झगड़ करके कोई फायदा नहीं। मानसिक स्वास्थ्य के साथ ले लो तो एक बूंद का एक अंश भी आपको आनंद और सुख देगा। जैसे रोटी 10 खाने से सुख नहीं दे देगा। खाने के लिए हम जीते नहीं है, जीने के लिए खाना चाहिए। इसलिए कैसे खाना चाहिए, ये सारे विचार, बक्ष और अबक्ष का विवेक, ये सारे महावीर भगवान ने छोटे छोटे बातों में कहा। अपना बीमारी फर्स्ट शरीर अशुद्धि से होता है, मानसिक अशुद्धि से होता है। मानसिक अशुद्धि को पहले शुद्धि करो, उसके बाद तनाव का शुद्धि भी करो, वात पित्त कफ को शुद्धि करो। ये सारे विचार है। और जीवन में हर लोगों के साथ मेरा संबंध कैसे रहना चाहिए, कितना गौरवान्वित रूप से होना चाहिए, ये सारे विचार हैं। छोटे छोटे विचार ही पूजा हो जाता है। इसलिए बंधुओं, हम क्यों पूजा करते हैं? किसका पूजा करते हैं? सात धातु का पूजा करते हैं, सोने का पूजा करते हैं, चांदी का पूजा करते हैं? नहीं, वहां धातु और सोने चांदी में बनाया हुआ वीतराग भगवान को हमने गुण दिया, उस गुणवान बनाया और सूर्य मंत्र दिया। इसको भगवान नाम से नामकरण करके जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण, परिनिष्क्रमण, केवल ज्ञान और निर्वाण का सारे कल्याणक उनको बना के और विराजमान किया और भगवान माना। उस रूप से हम उसको नमस्कार करते हैं। कोई पत्थर को हम भगवान करके नहीं नमस्कार करते, कोई धातु को वहां रखा है, अपना तिजोरी में रखा हुआ नेकलेस को और कंगन को हम नमस्कार नहीं करते। क्यों करते हैं? इसका स्वरूप को। इसलिए तदाकार स्वरूप करके वीतराग भगवान ऐसा है, उनका स्वरूप ऐसा है, उनका गुण ऐसा है। ऐसे ही गुणवान हम भी बनने के लिए यहाँ पूजा करता हूँ। इसलिए बंधु, यहाँ लेना देने का काम चलता है। विशेष रूप से हर प्रत्येक आत्म स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है, और नियतिवाद भी है, कालवाद भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय को हम अपना काल के अनुसार विशेष रूप से पंच परिवर्तन में अपना मन और मस्तिष्क का सुधार करके हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए जीव, अजीव, आश्रव, आश्रव बोले तो दुखाश्रव भी होते हैं, पुण्याश्रव भी होते हैं, पापाश्रव होते हैं, पुण्याश्रव होते हैं। इसलिए आश्रव 108 प्रकार आता है। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित, अनुमोदन, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, ये अनंतानुबंधी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संजुलन रूप से गुणने से हम 3 into 3 मन वचन काय गुणी कृतकारित अनुमोदन, 9 गुणी 3 मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, 9 गुणी 27
अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान संज्वलन और अनंतानुबंधी रूपी कर्म से हम गुणने से 108 प्रकार का कर्म आश्रव आ जाते हैं। हम अभी बटारक जी कितना टाइम बोलेगा, अभी मेरा टाइम ऑफिस का जाने का है, पूजा का है, आरती का है, और बाकी लोग बोलने का है, ऐसे ऐसे नाना प्रकार का कर्म का आश्रम मेरा मस्तिष्क में आता रहता है। इसको रोकने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए हम चित्त में चैत्य रूपी, वीतराग रूपी चैत्य को बार बार मेरा मन चंचल ना होने के लिए हमने मूर्ति को पूजन करते हैं और एकाग्रता के साथ वो वीतराग में हमने उनको क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, और भूखा नहीं है, प्यास नहीं है, हपोपी नहीं है, काम वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा 18 दोष रहित मेरा स्वामी है, उनका मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। पूर्व में वो हमारे जैसे सामान्य आत्मता और अनेक कर्म का निर्जरा करके अनंत तपस्या का फल के कारण उन्होंने भव भव में अपना कर्म को धो के फिर उन्होंने विशेष रूप से सर्व सकल परमात्मा और निकल परमात्मा रूपी अरहंत और सिद्ध हो गए। जैसे मेरा आत्मा में भी सिद्ध भगवान ने बनने के लिए, अरहंत भगवान होने के लिए पूरा शक्ति है, प्रयास करना है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, इस परिवर्तन से मैं भी एक दिन मोक्ष प्राप्ति करेंगे, इसी भाव के साथ हम पूजन करना चाहिए। दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, अंतर और गोत्र 8 प्रकार का कर्म को नष्ट करने के लिए हम प्रत्येक रूप से यहाँ पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए बंधुओं, कोई बंधन में नहीं रहना। नरक गति में बंधन है, तिर्यंच गति में बंधन है, देव गति में भी बंधन है, मनुष्य में भी बंधन है। इस चारों गति में मुक्त होने का संयम सिर्फ मनुष्य गति में है। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं। किसी कॉर्नर में भी आप हो, आपको सभी लोगों को मनुष्य गति प्राप्ति हुआ है, आपके पास सब कुछ है, तो आप समय को व्यर्थ नहीं करना। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस और ध्यान, इस सत्क्रियों को जानना, पहचानना और प्रेरणा देना। करोड़ देने वाले बड़े दानी नहीं होते, 1 रुपए करने वाले भी, 1 यूरो करने वाले भी छोटे नहीं होते। बंधुओं, अपना अपना शक्त्यानुसार आप लोग अपना धर्म में निरत हो जाइए। दूसरों को प्रति करुणा और अनुकंपा दिखाना हमारा धर्म बोला जाता है, ना केवल पूजा करना धर्म है। धर्म बोले तो मस्तिष्क में करुणा अनुकंपा के साथ होने वाला सब क्रिया वो धर्म माना जाता है। अनुकंपा करुणा के साथ साथ हम अपना ध्यान और योग निमित्त से अनंत रूपी क्रोध, माना, माया, लोभ को हटाने के लिए कोई भी क्रिया होता है, वो ही धर्म है। बंधुओं, आज जर्मनी जैन समाज इतना दूर आप जाते हुए आप लोग जिनेंद्र भगवान का वचन को मान के अपार गौरव के साथ पूजन करते हैं। वीकेंड में हो, कभी भी हो, आपको समय मिलता है, 5 मिनट में भी आप लोग धर्म करते हैं, वो बहुत बड़ा बात होता है। संगठन के साथ आप एक साथ मिलकर ऐसी पूजा करते रहिए, आपका जीवन अत्यंत मंगलदायक हो। लाइब्रेरी है, वहाँ हर गांव में म्यूजियम है। जर्मनी में छोटे छोटे गांव में नॉलेज लीजिए और धर्म को प्रचार बोले तो हम दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, और छोटे छोटे बातों से ही हमारा सिद्धांत मालूम पड़ता है। बड़े बड़े विचार बोलने से हम बड़े आदमी नहीं होते। इसलिए बंधुओं, विशेष रूप से प्रसंग आने से जर्मनी में भी एक जैन सेंटर हो, वहाँ 2 जगह में शायद जैनिज्म का जैनोलॉजी विभाग खुला है। अजीत जी बेनाडी उसमें जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए वहाँ का यूनिवर्सिटी में आप लोग, यदि आपको समय है, PhD कर लीजिए, वहाँ विशेष रूप का विशेष अध्ययन कीजिए।
आजकल जैन एक सिद्धांत फिलॉसफी का स्टडी होता है, दूसरा एक प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस कितना हो सकता है उतना आप कर लीजिए, और साथ साथ आप वहां प्रेरणा भी दीजिए। हर जीव में आत्म है, इसलिए हम कहाँ भी जावे हम सब आत्म रूप से देखते हैं। बहिरात्म हो, अंतरात्म हो, परमात्मा हो, ये तीन अवस्था है। हर बहिरात्म अंतरात्म की ओर जाके परमात्मा बने। इसी रूप से हम पेड़ पौधे के ऊपर भी भगवान रूपी आत्मा को देखते हैं, पशु पक्षी में भी वही आत्मा और परमात्मा को देखते हैं। इसलिए दुनिया में जैन धर्म सारे लोगों के ऊपर, सारे रेस, कास्ट, जीन्स, सबके ऊपर अनुकंप और करुणा के साथ देखते हैं। हर जीव मुक्ति प्राप्ति करे, इसी भाव के साथ सबके लिए मंगलदायक आशीर्वाद। ओम शांति ही शांति ही शांति। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः। काले काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणमपि जगतामास्म भूजीवलोके। जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु प्रसरतु सर्वसौख्यप्रदायिनी। प्रध्वस्ति गाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करः। कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वर। जर्मनी के जितने भी लोग हैं, आप लोग अपना म्यूजियम में यदि कोई जैन मूर्ति देखे तो जरूर इसका एविडेंस और इसका हिस्ट्री सब कलेक्ट कीजिए, हमको जरूर भेजिए। मंगल आशीर्वाद। Namaste Swamiji. Pavitra. We are so thankful to Sri Ajit Benediji for organizing this Jina Darshana and Guru Darshana event, special event today. My sincere thanks to Pujya Swamiji and Bhakti Purvak Namostu for giving his Ashirvachana to us. Also, my heartfelt thanks to all the parents who are all watching this event today, and to the Shravaka Bandhus of Germany who all have joined at time and performed puja. And especially to Ajit Benediji again for keeping us all together in all these events and creating this Jain community, the Jain group here in Germany. Thanks to all. Okay, any question? Ajit Benadi, anybody, any questions? They can ask questions. A few minutes if you got time. I have no questions. If somebody else wants to ask some questions, they are welcome. I have only one out of my curiosity, Swamiji. You also did all technical courses, and yes, you collected all the knowledge. What was the trigger to get focused totally on religion and become holy person? शायद सबके मन में यही क्वेश्चन है स्वामी जी। आप इतने पढ़े हैं, टेक्निकल लाइन में थे, ऐसे धार्मिक गुरु बनने का मतलब कैसा मोटिवेशन मिला? शायद यही है ना ज्योत्सना जी का क्वेश्चन। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा लाइफ में एक ऑक्यूपेशन होता है, एक लाइफ होता है। धर्म में एक लाइफ है हमारा, वो तो कोई भी हो, ऑक्यूपेशन इज द ऑक्यूपेशन है। आप अभी एक ವರ್ಕ್ करता होगा, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, so that is your occupation, but घर जाके आपको मन का संतुष्टि के लिए कुछ भजन गाते हैं, नहीं तो धर्म करते। धर्म बोले तो अनुकंपा करुणा, मैंने बताया अनुकंपा करुणा और रियलिटी, व्हाट इज द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, उसी के लिए हमने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम अपना टेक्निकल फील्ड, मेरे को कभी भी सवाल नहीं आया। हमारा जीवन में हम खेलते खेलते भगवान का पूजन करते थे, अभिषेक करते थे रोज मंदिर का। मेरे को बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। 1 किलोमीटर के हमारा घर में ही मंदिर था, और 1 किलोमीटर के साथ अपना पूर्वाश्रम में दादाजी लोगों का मंदिर था।
वहां जाके हम जलाभिषेक बिना आहार नहीं लेते थे। तो मेरे को आदत होता था उसका विदाउट पिच आउट ऑफ वाटर, ऐसा बोलते हैं ना, जैसे है। हम आपको बचपन का संस्कार यदि मिलता है पूजा करके, उसका बिना आपको फूड भी अरुचि हो जाता है यदि आपको पूजा नहीं करे तो। ऐसा स्थिति है मेरा। स्थिति धार्मिक वातावरण में जन्म लिया, इसीलिए लाइफ टाइम हुई था। फिर मैं कन्नड़ लिटरेचर भी पढ़ा था और कल्चरल इवेंट में जाता था, म्यूजियम में जाता था, म्यूजिक सुनता था, स्ट्रीट में कोई भी खेलते थे वो भी देखता था, साइकिलिंग का कुछ आर्टिस्ट आते थे वो भी देखता था। मतलब कोई भी मेरे को बंद नहीं किए, कोई भी घर पे सब कुछ क्यूरियोसिटी में देखो, जानो और अपनाओ। इसीलिए हमने सारे स्ट्रीट का कुछ भी हो जाता था, स्नेकर आते थे, उनका खेलते थे। फिर मालूम पड़ता था वो नहीं देख रहे हैं, इसके एनिमल जू में नहीं जाना है जैन लोग, क्योंकि इसमें हिंसा है, बंधन है, ऐसा सब सारे एनालिसिस भी होता था। फिर बंधन करके वो लोग इलाज करते थे, औषध करते थे चिड़ियाघर में। तो एक टाइप में वो बंधन है, दूसरा टाइप में वो लोग अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वो अच्छा था, इसीलिए एनालिसिस होता था। इसलिए बंधु, हर चीज क्यूरियोसिटी है दुनिया में, हर चीज में हमने एक देखते हैं, दुनिया में हर चीज देखना चाहिए। आज का प्लांट को देखो, कल अलग रहेगा। जैसे हर चीज के ऊपर आप बदला देखते रहना, और साथ साथ आप एक जीवन है वो आप सुंदर बनने के लिए कोशिश करना। इसलिए धर्म है वो एक ब्रीथ जैसे है, ब्रीथ बिना हम जी नहीं सकते। जैसे धर्म हमारे लिए ब्रीथ है, बाकी हमारा फूड है, सब बाकी ऑक्यूपेशन ये सारे। तो हर चीज के ऊपर क्यूरियोसिटी रखना और अच्छा चीज को ग्रहण करना, बुरा चीज को छोड़ देना। ये बचपन में मेरे को मिला इंस्पिरेशन था, इसलिए मैंने आध्यात्म में आया। ये परिपूर्ण नहीं है अभी, हमारा धर्म में परिपूर्ण के लिए और बहुत बहुत बड़ा रास्ता है, लंबा रास्ता है। अभी बिगिनिंग है, जस्ट हाउस होल्डर्स नियम है अभी। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। You are from, I think, Harige, Dhanpal's daughter? Swamiji, she is from Delhi. North India. Delhi, okay. I am born in a village near to Agra. And oh, good, good. जैसा Jambu आपने Swami is बताया, Antim Shrutkevali from Mathura. And Delhi is the Indraprastha. That is the Jain king's capital city, and Yes. Lord Bahubali, Ayodhya, Bharata, Ayodhya, and Bahubali is Paudanapur near Pakistan. So total over India ruled Jain kings in thousands of years. एक्चुअली मेरा बचपन भी बहुत सिमिलर था आपके जैसा, जैसा मैंने बताया। आई वॉज ऑल्सो बोर्न इन अ विलेज। फिर लाइफ चलता है, पढ़ने लग गए, सब एनालाइज तो किया। अब फिर एक एक्सटेंट ऐसा भी था जहाँ कर्मों का एक्सेप्टेंस रखना होता है। ओके, ये मेरा कर्मों का फल है, यहाँ मुझे ये करना है, सब है। पर उसके अलावा अब मेरे अंदर बस ये है कि कब मुझे भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस या ऐसा मिले जहाँ पे रोज मंदिर, मेरी माँ भी मंदिर रोज जाना और डेली अपना जैसा जैनिज्म का दिनचर्या होती है वैसा था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस, वर्क, फैमिली, एवरीथिंग ब्रॉट मी हियर। अभी भाव तो रखते हैं कि ऐसा कहीं मिले कि कोई तो फेज लाइफ का ऐसी जगह जहां था वैसा हो जाए, पर भाव रखने से क्या ये हो सकता है वो पता नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? देखो 6 एसेंशियल बताए हैं हाउस होल्डर में। फिर भाव पूजा में भी महत्व है। जैसे एक तुषमास भिन्न करके बुध महाचंद्र नाम का एक आदमी थे, अनपढ़ थे, और उन्होंने चिल्का अलग है और चना अलग है, ऐसा भेद विज्ञान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्ति किया। जैसे हमारा मेन थिंग्स है, जितने भी
सर्कमस्टेंसेस चैलेंजेस आ जाता है, उसकी चैलेंज को आपने कुछ भी हो उसमें हमने धैर्य लेके इसको मतलब सामने चैलेंज को अपना संयम के साथ जीने का प्रयास करना ही जैन धर्म का एक विशेषता है। इसलिए संयम धारण करना, टॉलरेशन, बहुत सवाल आता है नियम करना, क्या हम 3 बार खाए तो अच्छा है, 4 बार खाए तो अच्छा है, ऐसे 10 बार खाए तो भी अच्छा है, जानवर और हमारा क्या विशेषता है। इसलिए चैलेंज को स्वीकार करके कई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे तो अपना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसलिए जैनिज्म डिफिकल्ट टू फॉलो मीन्स हु से द डिफिकल्ट, who don't know the real truth, then we getting all the difficulties. Whenever you will understand everything really, then all the thing is easy. इसीलिए हमने सर्कमस्टेंस को कुछ भी हो, अभी आपका लाइफ में जर्मनी में हो ऐसा दुख का विचार नहीं करने का। हम अभी इंडिया में बैठा हूँ और कर्म भूमि में बैठा हूँ ऐसा भाव करते हुए अपना सवाल को निभाना, जल्दी जल्दी अच्छा संपादन करके फिर इंडिया में वापस आके आप अपना धर्म का वो कर सकते हैं। जब तक आपको जीने का एक सवाल है तब तक आप उपार्जन करेंगे, और उपार्जन का एक सेटिस्फैक्शन आपको फुल स्टॉप करना है, इतना तो ठीक है मेरा और आगे नहीं करने का, ऐसा भाव आने के बाद वो दुनिया देखता है आपको। कोई भी मुनि संघ में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना अकेले में भी धर्म का मंदिर के और कोई तीर्थ में आप रह सकते हैं। ये नहीं है मतलब हम एक अपना जीवन में एक प्लान बनाना जरूर है। कई बार प्लान भी नहीं हो सकता, तो अचानक आकस्मिक में होते हैं। इसलिए आप ज्यादा चिंता नहीं करना, कहाँ भी रहो जिनेंद्र भगवान का नाम बोलते हैं वही सुखी है। इसीलिए हम बैठ के भी जाप कर सकते हैं, मंदिर वर्क के फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। इतना तो स्लेवरी कहाँ भी नहीं है आजकल, इतना इंडिपेंडेंट और फ्रीडम है। फॉरेन कंट्री में भी आपको 8 आवर्स से 10 आवर्स 12 आवर्स से ज्यादा तो वर्क नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप लोग को फ्रीडम मिलता है। मन तो आपके वश में है, किसी का वश में नहीं है। इसलिए वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर थॉट, इन आवर थिंकिंग। सो कितना हो सकता है मन में उतना हम सात्विक का और चिंतन करना, तब आपको आनंद ज्यादा मिलेगा। और एक सेटिस्फैक्शन का भाव रखना हर चीज में। अभी मेरे को 2 कार चाहिए था, 1 कार में ही सेटिस्फैक्शन रखना। कार नहीं है तो मैं पिछले चतुर्थ काल में कार ही नहीं था तो मैं चतुर्थ काल का मनुष्य है, ऐसा सोचना। तो सोचने में क्या है, इसलिए अच्छा सोच के सेटिस्फैक्शन करना, वही है अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। इसीलिए किताब पढ़ने से ज्यादा मालूम पड़ता है। आप अच्छा किताब पढ़ लीजिए, विशेष रूप से रत्नकलंड का श्रावकाचार रिटन बाय चंपत राय जी, चंपत राय जैन, बैरिस्टर एट लॉ। बहुत सुंदर किताब है रत्नकलंड श्रावकाचार। हमने इसको अनुवाद किया था। जैसे द्रव्य संग्रह है और तत्वार्थ सूत्र है, उसके बाद स्टोरी बेस्ड पद्म पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, तो पहले बेसिकल नॉलेज है वो रत्नकलंड श्रावकाचार में मिलेगा, द्रव्य संग्रह में मिलेगा, और तत्वार्थ सूत्र और चाह डाला, ये 4 बुक को आपके लिए बहुत काफी विचार देता है जैनिज्म का। एक 4 किताब आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा। Thanks a lot. That was so nice. Yeah, that was perfectly keeping my hope actually. Yeah, thanks a lot. Any more questions? Benadi ji, any questions? No, I'm asking others. If there anybody wants any more. We are came Germany 2004 first time, and after that there Ajit Benadi, more than Frankfurt, he will pick up me 4 hours I think journey, 4-5 hours.
journey from left-hand drive Yeah. and Germany, Frankfurt to Wolfsburg, I think. So now wonderful. now we are in very near to Frankfurt. It is 45 minutes drive from Frankfurt. Next time when you are visiting Swamiji, we are also there. That time, I think few houses that time. Ajit Yeah. Benadi is bring their own home food, Yeah. something milk and all. Yeah. We are lucky to get only one person, and we eat only plain rice and palak. And 3-4 days I am not eat any boiling food because of no Jain family in Barcelona. So I am only eat that time almond and dates in 3 days in Parliament of World Religion. My first experience with Devendra Kirti Bhattarak Swamiji and myself and other Shwetambar sadhus like Amarendra Muniji and yes, Amarendra Muniji only along with us. Yeah, now we are increased in number, and that's very good. And next time, if there is such a visit, you will get to see all of us, I think. And Ajit, Shreyam Sagare from which place? Abha Deepak from which place? I am from Karnataka, Belgaum. Belgaum. Yeah, currently I am in Berlin. I am studying here. Okay, and Tukol is the famous judge, I think. Tukol family, who is the Tukol? I think that time Tukol is the very famous judge. Ajit Benadi. Tukol ravaru death ceremony ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಶ್ರೇಯಂಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಿ ತುಕೂಳ್, ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಯಂಸ್, ಸೌರಭ್ ಬರಿಗಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಬಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕು. ದೀಪಕ್, ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಮನಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್, ಶೈಲೇಂದ್ರ ದೋಶಿ, ಶ್ರೇಯಂಸ್ ಸಗರೆ, ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಟೋಂಗ್ಯಾ, ನಮ್ದು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद अजीत जी, आपका श्रीमती और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद. वो भी वेजिटेरियन का बहुत अच्छा वेगन का फॉलोवर है, इसलिए आप सबको मंगल आशीर्वाद. Any questions? No, right? और थोड़े questions होगा स्वामी जी. Maybe there are some more questions. Maybe we do the puja visarjana now, if Ajit Benade permits. Okay. Yeah. After the puja visarjan, we can continue our question and answer session. Yeah. Ajit Benade ji. Yeah. Shall we start the visarjan? I just want to thank Swamiji for puja visarjan, taking his time to give his ashirvadan to us. Okay. Okay, now do the Visarjan Puja, Ajit ji. Sorry? Visarjan Puja. Visarjan, करेंगे. So विसर्जन करेंगे. संपूर्ण विधि कर वीनों से परम पूजन ठाट में अज्ञान वश शास्त्रों को विदते चूक कीनो पाठ में सो हो पूर्ण समस्त विधि विद तुम शरण की शरणते बंदो तुम्हें कर जोर के उद्धार जामन भरते स्थापन सदा सन्निधि करण विधान दे पूजन विसर्जन यथावधि ज्ञान नहीं गुण काल दे दोष लागो सो न सब तुम चरण की शरणते बंदो तुम्हें कर जोर के उद्धार जामन भरते तुम्हारे आवागमन आवाहन कियो निज भाव में विधि विचार में से कृष्ण पूजन की होते चाव में पर विसर्जन भाव में तुम चरण के शरणते बंदो तुम्हें कर जोर के उद्धार जामन भरते तीन विवतो काल में तुम सादेव रहो सुख प्राण संकट नमो अंत कर जोर विधि में आशिका ले जैसी से चढ़ाया
भव के पाप के भुगुद्र हो जाओ मस्तु। जय बोलो बच्चा परमेश्वर भगवान की जय हो। जय जय बोलो छवि से तीर्थंकर भगवान की जय जय हो। जय जय बोलो पद्मावती माता की जय हो। जय जय बोलो कुष्मांडिनी माता की जय जय बोलो ज्वाला वालिनी माता की जय 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 बोलो हिंसा परमो धर्म की जय जय बोलो विश्व धर्म की जय 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 बोलो जैन धर्म की जय जय चलो स्वस्ति विचार करके बता रहे कि जय। जय जय थैंक यू वेरी मच। इच्छामि सर। आह्वानं स्थापनं चैव सन्निधीकरणं तथा पूजनं तु विसर्जनं सर्वे देवतेभ्यो स्वास्थानं गच्छता जह पूजनं तु विसर्जनं सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षतु मुखः व्याधयो यान्तु नाशम् दुर्भिक्षं चोरमारीक्षमपि जगतामास्म भूर्जिवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभोतु प्रसरतु सर्वसुख्यप्रदायिनी प्रद्वस्ति गाति कर्माण केवल ज्ञानभास्कर कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनेश्वर ओम शांति शांति शांति। आयतु ಎಲ್ಲರಿಗೂ